A very big hello to all the NIT aspirants. I'm here with the solution of the botany part of the ANTS FT4. Let's start without wasting time. 101. Texans. Texans, what are texans? Texans happens to be the categories. So that means texan is a scientific category of what? The taxonomic hierarchy. I hope you remember. Taxonomic hierarchy में हमारे पास 7 obligate categories हैं. That means 7 obligate texans हैं. ठीक है, अब हमने देखना है यहाँ में से कितना out here, which option out here is belonging to the same category or the texan. Green algae किसको बोलते हैं? Chlorophyceae को. What is Chlorophyceae? This happens to be a class of the algae. Mosses, इसका दूसरा नाम क्या है? Bryopsida, which also happens to be the class of bryophytes. So दोनों तो similar है, right है? What is horsetail? Horsetail is the equisetum. What is that? An example, the organism of what? The pteridophytes. Pteropsida का genus है. So this is different from this two. So this cannot be the answer for it. Okay? Cotton, Gossypium genus है. China rose, Hibiscus genus है. Malvaceae, it is a family. So ये does not belong to the same taxon. So this is also wrong. Petunia genus है. Solanum genus है. Datura genus है किसका? Solanaceae. So all of these are the genus. So this is a right option. Wheat, Triticum, which is a genus. Rice, Oryza, a genus. Poales, what is this? This is an order. Ales, what is this order? So this is not belonging to the same taxon. Therefore the answer for 101 happens to be what? The C option. 102. Dinoflagellates. What are dinoflagellates? Protistas, the photosynthetic protistas. Chrysophytes, photosynthetic protistas. Euglenoid, ये photosynthetic भी है और heterotrophic भी है. But ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? These are belonging to the protistas. अब common feature क्या इन सब में? चलिए देखते हैं. Similar type of reserve food material, but are they having the same reserve food material? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए euglenoids. Euglenoids are showing you mixotrophic habit. तो obviously इसका इनके साथ खाना similar नहीं होगा. इसका क्या होता है वैसे? पैरा अमाइलम स्टार्च, जो कि बुक में नहीं लिखा, बट वैसे भी आप सोच सकते हैं ये तो हेट्रोट्रॉफिक भी है, तो इसका फूड रिजर्व इनके साथ सिमिलर नहीं है. सो दिस कैन नॉट बी सिमिलर. पॉइंट आउट हियर. हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला. हेट्रो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला. सबसे पहले जाते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स. अगर आपको याद है इसमें 2 फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्स ग्रुप में है, एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप में है, एंड दोनों के दोनों डिफरेंट है, विच इज करेक्ट. हेट्रोकॉन फ्लैजिला बिलोंग्स टू द व्हाट? द डिनोफ्लैजिलेट्स. करेक्ट है, तो वो तो राइट हो गया इसके पास में. क्राइसोफाइट्स एग्जांपल क्या? डायटम्स, नॉन मोटाइल, तो फ्लैजिला तो है ही नहीं. हेट्रोकॉन्ट ये कैसे हो सकता है? Does not belong to that. So this is not similar. Euglenoids may be flagella क्या है? Heterocont है. एक छोटा एक बड़ा अगर आपके पास आता है, different in sizes. Flagella किस में है? तो answer is what? Euglenoids है ना. तो ये भी है यहाँ पे right. But इन तीनों के अंदर heterocont flagella तो नहीं है. So this cannot be the answer. Now occurrence in freshwater habitat mostly. देख लीजिए हमारे पास अगर मैं क्राइसोफाइट्स के लिए जाती हूँ, दिस अकर्स इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन, दोनों के दोनों. व्हेन मैं डिनोफ्लैजिलेट्स में जाती हूँ, दिस अकर्स इन व्हाट? दे अकर इन मेराइन. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द यूग्लिनॉइड्स? दीज आर व्हाट? फ्रेश वाटर. तो ये भी हमारे पास सिमिलर नहीं हुआ, तो ये भी आंसर रॉन्ग है. When I go to chlorophyll A, जो भी फोटोसिंथेसिस करता है उसके पास में क्लोरोफिल A होना ही पड़ेगा. दैट इज मस्ट. आप एलिमिनेट करके भी जाओगे तो भी आपको आंसर मिलेगा. Therefore the answer for 102 happens to be the D option. 103. Virus did not find a place in classification. 2 kingdom में भी नहीं है, 3 में भी नहीं, 4 में भी, 5 में नहीं है. क्यों नहीं है? चलो देखते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट पैरासाइट है नहीं है, उसका क्लासिफिकेशन में पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है. आई होप आपको पता है हमारे पास कितने ऑर्गेनिज्म. फंजाई है, आपके पास पैरासाइट्स है, बट दे आर हैविंग अ पोजीशन इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन फॉर इट, दिस कैन नॉट बी द रीजन फॉर इट. ओके. Non-cellular organisms
obviously हमारे पास cellular nature is one of the main feature out here. मोनरा एंड प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टीसेलुलर है, तो वो सेलुलर नेचर पे है, नॉन सेलुलर है. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इट इज नॉट प्लेस्ड अंडर द क्लासिफिकेशन सिस्टम. Having an inert crystalline structure, एक लिविंग सेल के पास में कभी भी inert crystalline structure नहीं होता है. हम जैसे के जैसे वैसे अंदर बाहर ऐसे ही रहते हैं, बट यहाँ पे इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसके पास है. सो दैट मेक्स इट व्हाट, नॉन लिविंग फीचर ऑफ द वायरस आउट हियर. सो दैट इज व्हाई द बी एंड सी ऑप्शन हैपेंस टू बी करेक्ट. और ये डायरेक्टली लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, देयरफॉर द आंसर फॉर 103 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. दैट मीन्स बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. 104 मैच द फॉलोइंग. चलिए चलते हैं इकोलॉजी की साइड में. कोमेंसालिज्म विच इज इनकरेक्ट देखना है आपने. कोमेंसालिज्म, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश. क्या है? सी एनिमोन ऐसा है, नीचे में क्लाउन फिशेस होती है. सी एनिमोन के पास में क्या टेंटिकल्स है. जब क्लाउन फिश को खाने के लिए कोई आता है, प्रीडेटर आता है, तो ये अपने टेंटिकल से क्लाउन फिशेस को बचा देता है. ये तो इसका अपना नेचर है. और इसको क्या हो रहा है, बेनिफिट. यहाँ पे क्या है, कोमेंसालिज्म मींस वन इज बीन बेनिफिटेड, वन इज नीदर बेनिफिटेड नॉट हार्म्ड. तो दैट मींस वो न्यूट्रल रिलेशनशिप है. सी एनिमोन को 0 है एंड क्लाउन फिशेस को प्लस है. तो दिस इज करेक्ट, एन एग्जाम्पल फॉर कोमेंसालिज्म. ये राइट है. म्यूचुअलिज्म, जहां पे दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, लाइकेंस है, माइकोराइजा है, बोथ ऑफ दीस आर बेनिफिटेड. सिंबल आउट हियर, बोथ ऑफ दीस आर बेनिफिटेड, व्हिच इज अ करेक्ट ऑप्शन. को एवोल्यूशन, जब हमारे पास ये भी एक टाइप का म्यूचुअलिज्म है, बट ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. A fig is being pollinated by the wasp and wasp cannot complete its life cycle without the fig. तो ये प्लांट पॉलिनेटर का रिलेशनशिप है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, को एवोल्यूशन है, और अगर मरेगा तो दोनों के दोनों एक साथ एक्सटिंक्ट भी होंगे. एंड दिस इज करेक्ट आउट हियर, व्हिच इज आल्सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. So this is also correct, this is also correct. Amensalism, amensalism मतलब एक को क्या हो रहा है यहाँ पे, हार्म, और एक को क्या हो रहा है, नो इफेक्ट आउट है, तो न्यूट्रल आउट है. One is benefited, other is unaffected. This is unaffected, but one is what, harmed. तो यहाँ पे बेनिफिटेड हो गया. अगर ये होता तो मेरे पास क्या होता, कमेंसालिज्म. यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकता है, एंटीबायोसिस का. एक माइक्रोब से केमिकल निकलता है, दूसरे को हार्म करता है. इस जो ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है. वैसे स्मूदर क्रॉप्स भी है, सर्टेन प्लांट्स आर देयर, वो उसके रूट से केमिकल्स निकलते हैं, दूसरे प्लांट को नियर बाय ग्रो करने नहीं देता. जो नियर बाय ग्रो करने नहीं मिलता जिसको, वो क्या है, हार्म्ड है. बट द मेन प्लांट आउट हियर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड आउट हियर, तो उसको बोलते हैं अमेंसालिज्म. तो विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड इज द डी ऑप्शन. We don't have the examples for amensalism in NCERT, but the word amensalism is mentioned out here. Is that okay? चलिए. 105. Ray florets. I hope you understand the word. Sunflower is having two different types of florets. The disc florets and the ray florets. है ना? याद है तो येलो कलर वाला जो होता है, the ray florets. According to NCERT, the ray florets are having inferior ovary. अगर मैं इंफीरियर ओवरी की बात करती हूँ, इसको मैं और क्या बोलती हूँ, दिस इज ऑल्सो सेड टू बी एपिगाइनस. एंड along with this, along with the ray floret, cucumber, guava एग्जाम्पल लिखा है. When I go for superior ovary, उसी का दूसरा नाम क्या है, हाइपोगाइनस. इनफैक्ट हमारे पास पी से लेके सोलनम से लेके लिलिएसी लेके सारे के सारे आर सुपीरियर. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर फॉर इट. फिर आ गया मेरे पास हाफ इंफीरियर, क्या बोलते हैं इसको, पेरीगाइनस. इसमें क्या एग्जांपल लिखा है, रोज, प्लम, पीच आर शोइंग यू हाफ इंफीरियर कंडीशन. सो दैट मीन्स अगर मैं एलिमिनेट करके भी जाती हूँ और डायरेक्टली एनसीईआरटी को पढ़ती हूँ, तो भी मुझे आंसर मिलता है रे फ्लोरेट्स आर हैविंग एपिगाइनस. दैट मीन्स इंफीरियर ओवरी above the gynoecium. Other floral members are above the gynoecium, therefore the gynoecium is said to be inferior. The answer for 105 happens to be the D option. 106. Which of the following is correctly associated? Correctly है, but all the three characteristics. ठीक है, तीनों के तीनों. Maize. What is maize? Maize belongs to Poaceae family. बट जब हम पोएसी बोलते हैं, राइस, व्हीट, मेज, सिर्फ राइस और व्हीट जो है मेरे पास C3 प्लांट्स है. मेज हैपेंस टू बी C4 प्लांट.
Asparagus, maize, sorghum are the examples. Sugarcane are the examples for C4 plants. तो ये पहले ही wrong हो गया. Closed vascular bundles. I hope आपको पता है जो monocots होते हैं उनके पास में closed ही है. That is a correct option. ये वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है. स्क्यूटिलम, व्हाट इज स्क्यूटिलम? इट इज द नेम ऑफ द ओनली कॉटलिडन ऑफ द मोनोकॉट्स. तो ये भी मेरे पास राइट है. अगर मैं ऐसे भी जाऊं कि मेज में कौन सा रॉन्ग है तो ओनली दिस पार्ट इज रॉन्ग. इट शुड बी C4. तो दिस आंसर इज रॉन्ग. चलिए, अनियन, लिलिएसी फैमिली. डोंट टेल मी कि अनियन को डिलीट कर दिया गया है एनसीईआरटी से. थोड़ा तो हमने पहले से पढ़ा, आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा. बल्ब है, यस, अनियन, गार्लिक, ऑल ऑफ दिस आर बल्ब्स आउट हियर. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसके बाद कौन सा एस्टिवेशन होता है? वेलवेट. ठीक है ना? सो दिस हैपेंस टू बी अ रॉन्ग आंसर आउट हियर. Let's talk about the C option. Solanum, Solanaceae family है. Valvate estivation, which is correct. I hope you are aware of the word valvate. हमारे पास पांचों पड़े हैं यहाँ पर और हमारे पास कैसे? They do not overlap in general. तो मेरे पास वो valvate है, correct है. Exile placentation, which is correct. Berry is the fruit, correct है. Berry है mainly, कभी कभी capsule भी होता है, but main पे जाएंगे, which is berry. So this happens to be the correct option out here. Let's talk about the fourth option, P, Leguminaceae, Fabaceae, C3 pathway, which is correct. Endospermic, आपको पता है Leguminaceae, Fabaceae हमारे पास क्या है? Non-endospermic. Vexillary estivation, which is very correct. I hope you remember. अगर मैं इस पे जाती हूँ, एक बड़ा, दो छोटे and दो सबसे छोटे, तो this happens to be correct. The wrong option out here happens to be the what? Endospermic. तो आपने किस में wrong, किस में right वो भी देख लिया है. The answer for 106 happens to be the C option. 107. Cyclic photophosphorylation. साइक्लिक मतलब अगर यहां से निकला है कोई चीज घूम के वापस आएगा, साइक्लिक है. नॉन साइक्लिक मतलब वापस अपना पोजीशन पे नहीं आएगा. फोटो लाइट, फॉस्फोराइलेशन. अगर कभी आपसे फॉस्फोराइलेशन अकेला पूछा है, व्हाट डज इट मीन? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म्स व्हाट? ATP. इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, करेक्ट है. इज सिमिलर किसको? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. सिमिलर टू दिस नॉन साइक्लिक मतलब जो वापस अपना पोजीशन पे नहीं आएगा. तो देख लेते चलिए. ये मेरे पास साइक्लिक है, ये मेरे पास नॉन साइक्लिक है. फाइन. पहला पूछा नंबर ऑफ फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व. इन केस ऑफ साइक्लिक मेरे पास में एक ही है. इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक मेरे पास फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व है. फाइन विद दिस. चलो, तो दैट इज क्या? नॉट सिमिलर. ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इसको हम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. अगर नेक्स्ट पेपर में कभी आपको OEC आया तो मेरे पास में वही है. ऑक्सीजन इवॉल्व कैसे हुआ? वाटर स्प्लिट किया तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ. अगर ये ऑप्शन में आता है तो घबराना नहीं है. पर ये किस में है? इट इज सीन इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक एसोसिएटेड विद व्हाट? द पिगमेंट सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 2. सीन आउट हियर, नॉट सीन आउट हियर. ठीक है, तो ये भी सिमिलर नहीं हुआ. NADP reductase activity, it is seen in case of what? In case of non-cyclic, it is seen, it is not seen in case of this. जब NADP reductase activity होता है, NADP converts into NADPH plus H plus. कहाँ पे? स्ट्रोमा में. So this is seen only non-cyclic. That means तीनों points में they दोनों आपस में different होते हैं. तो let's see the fourth point. Pumping of protons. कहाँ से? स्ट्रोमा to the lumen. हमारे पास अगर ये एक्टिविटी है तो ये ल्यूमेन में ही हो रहा है. बट अगर मैं जाती हूँ PQ क्या बनता है? H2 बनने के लिए जब PQ है, ये जब H2 भी बनता है, ये इलेक्ट्रॉन तो लेता है पहले से. कहां से? फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. यहां से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, बट प्रोटॉन कहां से लेता है? फ्रॉम द स्ट्रोमा. ये इसके पास आता है. जब ये आगे देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, किसको देता है? साइटोक्रोम को. वो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, प्रोटॉन नहीं लेता है. तो प्रोटॉन कहां जाता है? इट गोज टू ल्यूमेन. So therefore, and this is seen in both the cyclic as well as non-cyclic. Therefore, this is similar दोनों में. Therefore, the answer for this question happens to be the D option.
108. How many ATP are produced from aerobic respiration of one molecule of 2-phosphoglycerate? सबसे पहले ये वर्ड भी देखना है, one molecule. चलिए देखते हैं ये कहाँ मिलता है. This is seen in case of glycolysis. 2-phosphoglycerate. क्या बना? Phosphoenol pyruvic acid. क्या बना? Pyruvic acid. ठीक है ना. ये मेरे पास में क्या खत्म हो गया? आई एम डन विद व्हाट? ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है. अब इसने क्या पूछा? ETC ओनली. क्या यहाँ पे मेरे पास में कहीं पे भी ATP बना? यहाँ पर व्हेन आई गो फॉर इट, यहाँ पे ATP बनता है. बट इज दिस ATP फॉर्म थ्रू द ETS? नो, इट इज डायरेक्टली बीन फॉर्म सबस्ट्रेट लेवल पे. तो ये तो कुछ नहीं करना. पार्विक एसिड से मैं कहाँ गई? एसिटाइल कोएंजाइम A. जब मैं यहाँ पे गई विच इज नोन एज इंटरमीडिएट स्टेप, तो मेरे पास में NAD कन्वर्ट्स इनटू NADH2. क्या हो गया? NADH2, विच इज करेक्ट. फाइन विद दिस. एक मॉलिक्यूल से एक बना. एंड एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाता है? TCA में. दैट मीन्स द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट मीन्स द CAC साइकिल. इन केस ऑफ दिस Krebs साइकिल मेरे पास में 3 बनता है क्या? NADH2. एक बनता है मेरे पास FADH2 और एक बनता है मेरे पास में GTP. आई कैन ऑल्सो राइट ATP. अगेन ये जो है ये तो डायरेक्टली बन गया विच इज सबस्ट्रेट लेवल. फाइन. तो ये मेरे पास ETC में नहीं जाएगा, ETC ETS में नहीं जाएगा. तो लेट मी सी नाउ कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बना. यहाँ पे मेरे पास कितना बन गया? 3. यहाँ पे 3 molecules of NADH2. I hope you understand. एक molecule of NAD into NADH2 gives you 3. तो 3 into 3 कितना हो गया मेरे पास? कितना हो गया? 9. FADH2 एक कितना देता है? 2. तो 1 into 2 कितना देता है मेरे पास में? देता 2. 2 plus 9 कितना हो गया मेरे पास? 11. 11 plus 3 कितना होता है? 14. Therefore the answer for the question happens to be the B option which is 14. आई होप कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं किया होगा आपने. आपको पता है Krebs साइकिल में हमारे पास टोटल NADH2 6 बनता है, टोटल FADH2 2 बनता है और 2 GTP और ATP बनता है. ठीक है. चलिए 109 करेक्ट मैच को करना है. इट इज रिलेटेड विद द हॉर्मोन्स. ऑक्सिन, द फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड. क्या करता है आपको यहाँ पे? जैसे मैं देखती हूँ एज अ स्टूडेंट एपिकल डोमिनेंस मुझको दिखता है और मैं टिक कर देती हूँ. बट हमको मालूम है ये क्या बोला? ओवरकम. ऑक्सिन कॉसेस एपिकल डोमिनेंस. ओवरकम कौन करता है? साइटोकाइनिन. तो इसको मैं मैच करती हूँ तो किससे? 3 से. फाइन. उसके बाद में ऑक्सिन अभी तक नहीं हुआ मेरे पास में. ऑक्सिन इज नोन टू इरेडिकेट व्हाट? द वीड्स. 2,4-D वीड्स को इरेडिकेट करता है. अच्छा लॉन बनता है. तो मेरे पास क्या हुआ इसके साथ में मैच करने से? 2. जिब्रेलिन, रोजेट से बुल्टिंग इंटरनोड को इलोंगेट. दिस इज व्हाट? 1. इथाइलिन, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट. What is that? With the respiration, with the ripening of the fruit, rate of respiration increases. This is known as respiratory climatic effect, and the answer for ethylene happens before. So let's check the options now. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. I need not read the other options. I hope you can read it out here. और कुछ अगर आपको लगता है, you can see to that. But मेरे पास answer first से ही आ गया. Therefore, the answer for this question happens to be the A option. 110. अब जैसे ही आप इसको देखते हो, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. कोई नहीं मुझको बोलेगा कि ट्राई हाइब्रिड मेरे सिलेबस में नहीं है. इसको आपने क्लेवरली अंडरस्टैंड करना है. मोनो हाइब्रिड को लेके कर लेना है. मैं कल टेट्रा दे दूं, पेंटा दे दूं, डरना नहीं है. फॉर व्हाट? हाइट ऑब्वियसली 3 है. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर एंड द फ्लावर. ठीक है. कलर ऑफ द फ्लावर एंड द सीड शेप. ठीक है. What is the probability of getting the seeds with a genotype this? ऑटोमेटिकली आपको पता है जब हमारे पास ऐसा क्रॉस होता है तो हमारे पास में क्या आ जाता है? हेट्रोजाइगस आ जाता है. What? The F1 generation. That means all the characteristics are with the dominant feature. इसको हम सेल्फिंग करते हैं. उसमें से ये कितने आ रहे हैं? तो घबराओ मत, सिर्फ हमने मोनो हाइब्रिड को लेना है. आई एम जस्ट टेकिंग वन ऑफ इट. चलिए देख लेते हैं. अगर मैं इससे सेल्फिंग करती हूँ, मोनो हाइब्रिड लेती हूँ, व्हाट डू आई गेट? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी. यही मिलता है. चलिए आप देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, कितना स्मॉल टी मिला? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कितना स्मॉल टी मिला? ओनली 1 मिला. कितने में से? 4 में से.
फाइन। अब मैंने सेकेंड ऑप्शन ले लिया, फिर वही है यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कितना मिला 2/4। फिर मेरे को मिला स्मॉल w, कितना मिला 1/4। आई होप इतना समझ में आया सबको। कल मैं और भी लगा दूं तो घबराना नहीं है, दिस इज जस्ट टू चेक योर नॉलेज। पेपर में भी नीट वाले ऐसे ही पेपर देंगे। अब इसको मैंने किया 2/4 into 4 16, 16 into 4 64, मेरे पास में आ गया ये। अच्छा वैसे पूछा नहीं आपको, इंडिविजुअल पूछा यहाँ पर, तो लेट्स सी टू दैट। अब हमारे पास देखिए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा 62/64 पहला वाला क्वेश्चन का, तो ये क्या हो गया 2/64 कहीं नहीं है, तो व्हाट इज दिस 1/32। तो मेरे पास 1/32 कहीं नहीं है, ये राइट है। दैट मीन्स फर्स्ट का आंसर मेरे पास 1/32 आ गया। लेट्स सी टू दैट, ये दिस इज सेम। सेकेंड देखते, कैपिटल टी स्मॉल टी, कितना आया कैपिटल टी स्मॉल टी 2/4। फिर मेरे पास आया कैपिटल आर स्मॉल आर, कितना आया 2/4। फिर मेरे पास कितना आया, मेरे पास कैपिटल डब्ल्यू कितना है 1/4, तो आई एम गेटिंग 1/4। कितना आंसर आ गया, अगर मैं इसको करती हूँ 4/64, 4/64 कितना आता है 1/16, काटो इसको 4 से काटो 1/16, तो व्हाट इज दिस, मेरे पास ये आ गया। वैसे तो आपको फर्स्ट से ही आंसर आ गया, लेट मी स्टिल टीच यू। लेट्स गो फॉर द थर्ड वाला। चलिए देखिए आप इसको देखो, बताओ सोचो वन में क्या बोलना है। कैपिटल टी स्मॉल टी 2/4, फिर मेरे पास क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू 2/4, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या आ गया, करो इसको 1/2 into 1/2 into 1/2, तो 1 by कितना हो गया 2 into 2 4, 4 into 2 8, that means 1/8। Therefore the answer for the question happens to be option number A। I hope सबने कर लिया होगा, मत बोलना कि ये ट्राई हाइब्रिड क्यों दिया। क्लियर, हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स हर टाइप का क्वेश्चन का आंसर कर सकें। You should be, my students should be different from all the other students of our country। 111, which of the following is not an RNA? चलिए देखते हैं। RNA मेरे पास 3 टाइप का होता है, मैसेंजर, यहाँ पे है कि नहीं, राइट है, होता है। अब मेरे पास कैटालाइसिस करने वाला एबिलिटी फंक्शन पूछा है। RNAs आर कैटालाइटिक इन फंक्शन, राइबोजाइम है, एंजाइम का काम करता है, तो विच इज करेक्ट। मॉडिफायर किसी चीज को मॉडिफाई नहीं करता है, बट स्टिल लेट मी सी द फोर्थ ऑप्शन, अडेप्टर। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, जब मेरे पास ट्रांसफर आरएनए होता है उसके पास एक एबिलिटी क्या है, रीड द कोड्स एंड ब्रिंग व्हाट द अमीनो एसिड्स। तो वो क्या करता है, इसको अडेप्ट करता है, यहां से रीड द कोड्स एंड ब्रिंग द अमीनो एसिड व्हिच इज अटैच्ड टू द 3' एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। दैट इज व्हाई ट्रांसफर आरएनए को हम लोग अडेप्टर भी बोलते हैं। सो दिस इज आल्सो इट्स फंक्शन। जो फंक्शन नहीं है मॉडिफायर, इट डज नॉट मॉडिफाई एनीथिंग। देयरफॉर द आंसर फॉर 111 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। ठीक है। 112, PGRs, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, रेगुलेटर मीन्स प्रमोट भी करेगा, रिटार्ड भी करेगा, रेगुलेटर आर कॉम्प्लेक्स। इज दिस लाइन राइट आउट हियर? नो। व्हाट इज दिस? सिंपल, स्मॉल, सिंपल बुक में लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक करेक्ट है, इंटरसेलुलर विच इज करेक्ट, इंटरसेलुलर राइट है, इंट्रा होता तो क्या होता, जेनेटिकल। सो मेरे पास में दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। क्या रॉन्ग हो गया, कॉम्प्लेक्स बदले सिंपल। PGRs are non-genetic factors. Yes, ये तो जेनेटिकल नहीं है, जेनेटिकल वाला तो जेनेटिकल है। This is a correct line. That means option number 1 is incorrect and option number 2 is correct. Therefore, the answer is D. Only 2 is correct. ठीक है, दोनों करेक्ट नहीं है, दोनों रॉन्ग नहीं है। Therefore, the answer for 112 happens to be the D option. 113, polymorphism in DNA sequences. Now, what does the word polymorphism mean? Variation at genetic level. ठीक है, वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। किस में? ऑब्वियसली यहाँ पे डीएनए बताया है। इज द बेसिस फॉर व्हाट? जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। लाइन लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म किस में हेल्प करता है? जेनेटिक मैपिंग। जैसे आपको पता स्निप सब वेरिएशन आ गया, डिफरेंसेस आ गया, तो हमको लोकेशन में हेल्प करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का द बेसिस ही ये है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डीएनए क्लोनिंग,
क्लोन मतलब क्या, सिमिलर। अगर वेरिएशन आ गया तो वेरिएशन से क्लोन कैसे बनेगा? सो इज दिस हेल्पिंग इन द डीएनए क्लोनिंग? नो। देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, बट वो कौन से मोर देन वन है? ए एंड बी, सी इज नॉट द राइट आंसर। द आंसर फॉर 113 happens to be the D option. 114, small standing crop of phytoplanktons. When I talk about that, that means हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about the aquatic food chain. तो सबसे पहले aquatic ecosystem है, ठीक है ना? अब aquatic ecosystem में जब मैंने बोला standing crop, I'm talking about the living organism out here. तो that means किसका है? Biomass, ठीक है ना? That means biomass of the aquatic ecosystem में pyramid कैसे बनता है? तो देखो, small standing phytoplankton support large standing crop of zooplankton. अगर आपको याद है तो बुक में कैसे बना है? ऐसा बना है छोटा, फिर यहाँ पे बना है, if I'm not wrong, 4 और 21 लिखा है, 4 and 21 लिखा है. That means what? ये तो उल्टा हुआ. So what is this? Support large standing crop of fishes. Obviously इसके ऊपर जाएगा, ये और बड़ा बन जाएगा. Under this food chain, the pyramids of biomass. कैसा बना मेरे पास यहाँ पर? This is what? Inverted. ठीक है ना? But when I talk about the second, क्या पूछा? नंबर. तो नंबर में हमको पता है phytoplankton ज़्यादा है, zooplankton उससे कम है, small fishes उससे कम है, large fishes उससे कम है. तो मेरे पास क्या आएगा? ऐसा आएगा. What is this number for this? ठीक है ना? तो नंबर में मेरे पास में क्या आएगा? अपराइट आएगा. इसमें मेरे पास क्या? इन्वर्टेड. तो व्हाट इज द आंसर? पहला पूछा बायोमास, तो पहला बायोमास है तो इन्वर्टेड. ये दोनों तो रॉन्ग हो गया, तो ये राइट है, बट यहाँ पे अपराइट, यहाँ पे क्या? इन्वर्टेड. दिस इज करेक्ट. द आंसर फॉर 114 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. ठीक है. 115, which one of the following hormone plays important role in seed development, maturation, dormancy? करेक्ट लाइन है, पूरा आपको ये पढ़ाया गया है, लाइन टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी, विशेष टॉक्स अबाउट व्हाट? एब्सिसिक एसिड. इसको हम एब्सिशन भी बोलते हैं और हम इसको डॉर्मिन भी बोलते हैं, इनहिबिटर भी बोलते हैं. तो ये डॉर्मेंसी कॉज करता है. जिबिन की बात करूं तो डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है ना? द आंसर फॉर 115 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. काइनेटिन जो मेरे पास क्या है? साइटोकाइनिन को बोलते हैं, है ना? चलिए, IAA happens to be indolactic acid. 116, let's go for it. A diagrammatic question है, आपको लेबल करने हैं. Let's talk about that. सबसे पहले ये है किसका डायग्राम? Have they written that? Yes, maize seed का. ठीक है ना? चलिए देखते हैं. सबसे पहले ये मेरे पास दो पार्ट्स है. This happens to be the endosperm. This happens to be the embryo. चलिए ठीक है. अब हम यहाँ पे देखते हैं इस पोर्शन में, लोअर पोर्शन में देखते हैं हमारे पास में एम्ब्रायो है. एम्ब्रायो के अंदर मेरे पास ये क्या हो सकता है? तो दिस फर्स्ट ऑप्शन आउट हियर, कैन दिस बी द एल्ड्रॉन लेयर? ऑब्वियसली नो. एल्ड्रॉन लेयर किसको बोलते हैं? एंडोस्पर्म के सराउंडिंग लेयर को. सो दिस इज व्हाट? एल्ड्रॉन लेयर. ये क्या है यहाँ पे मेरे पास में? यहाँ पे साइड में एक हमारे पास शील्ड शेप कॉटलिडन होता है जिसका नाम है स्क्यूटिलम. तो मेरे पास अगर फर्स्ट ऑप्शन जाते हो तो मेरे पास क्या है? स्क्यूटिलम. यहाँ पे भी ऑप्शन है स्क्यूटिलम. ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दीजिए. आगे चलते हैं. ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 क्या है? एल्ड्रॉन लेयर विच इज ऑल्सो ट्रिप्लॉइड इन नेचर. एंडोस्पर्म का सराउंडिंग लेयर है. सो मेरे पास में एल्ड्रॉन लेयर, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है. आगे चलते हैं. फिर मेरे पास ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे मेरे पास क्या है? शूट अपेक्स. शूट अपेक्स को कवर, ऑब्वियसली रूट अपेक्स तो नीचे ही होगा ना. शूट अपेक्स को कवर करने के लिए शूट अपेक्स एंड फ्यूली प्राइमोडिया कौन करता है? फ्लोरल स्ट्रक्चर कर, सॉरी फोलियर स्ट्रक्चर करता है. उसका नाम क्या है? कॉलियोप्टाइल. तो मेरे पास सी क्या हो गया? कॉलियोप्टाइल. और डी क्या है? 4 वाला क्या है मेरे पास में? कॉलियोराइजा. रूट को कर रहा है, हॉलो स्ट्रक्चर है ना? और उसका नाम क्या है? कॉलियोराइजा. ठीक है. अनडिफरेंशिएटेड मास बोलते हैं, कॉलियोराइजा को अनडिफरेंशिएटेड मास बोलते हैं. ठीक है. चलिए, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. यहां तक राइट था. यहाँ पे कॉलियोराइजा, राइजा से देखो रूट्स के लिए होता है, ये नीचे रूट होगा. पी से प्लूमिल होता है, ये ऊपर होगा. देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 117, सिलेक्ट करेक्टली मैच्ड पेयर. बहुत क्वेश्चंस पे पेपर में ऐसा दिया, बट हमने चेंज कर दिया. आगे देखते हैं. हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है, बट दिस हैपेंस टू बी रिसेसिव. फाइन. अब
एक और चीज बता दूं, कल बाय चांस किसी पेपर में लिंक्ड के बदले लिमिटेड है, इन्फ्लुएंस्ड है, ये ऑप्शन भी आ सकते हैं, पुराने पेपर्स में आए हैं। तो यहाँ पे वो सब आने से भी घबराना नहीं है, उसका आंसर लिमिटेड नहीं होगा, उसका आंसर इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, उसका आंसर लिंक्ड ही होना पड़ेगा। तो सेक्स लिंक्ड इज करेक्ट, बट डोमिनेंट के बदले रिसेसिव होना पड़ेगा। सो दैट इज वाई मेनली सीन इन केस ऑफ व्हाट, द मेल्स रादर देन फीमेल। इट इज एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है, तो कौन सा एक्स लिंक्ड है? तो दिस इज रॉन्ग मैच्ड। मायोटोनिक डायस्ट्रोफी ऑटोसोमल है, करेक्ट है। रिसेसिव हमारे सिलेबस में एक ही जो डोमिनेंट है वो कौन है? मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। तो ये मेरे पास ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइड द मींस इंक्रीज इन द क्रोमोसोमल सेट 3n 4n 5n 6n को हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। कब हो रहा है मेरे पास? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। अगर टीलोफेज के बाद में, अगर नहीं टीलोफेज के बाद में हम सबको पता है कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गया। अब मैंने अगर ये कर दिया, ये सेल है ओरिजिनल, दिस वाज द सेल, इसने डिवाइड किया कैरियोकाइनेसिस, इसने ये बना दिया। इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गया, दैट मींस क्रोमोसोम नंबर इज डुप्लीकेटेड आउट हियर। अब मैंने इसमें क्या किया? साइटोकाइनेसिस नहीं किया। यहां पर अगर मैं ये कर देती हूं तो इट रिमेन्स ऑफ द सेम प्लॉइडी। अगर मैं ये नहीं करती हूं तो डबल क्रोमोसोम हो गए, तो व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू लीड टू पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। सो दिस इज द राइट ऑप्शन आउट हियर। लेट्स टॉक अबाउट द डी ऑप्शन, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ एक्स, ठीक है, क्रोमोसोम किस में? इन केस ऑफ मेल। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? मेल में XXY। दैट मीन्स इस मेल के अंदर काफी फीमेल फीचर्स आर डेवलप्ड आउट हियर, ठीक है। सो दैट हैपेंस टू बी स्टेराइल मेल। Therefore the answer for the question 117 happens to be the C option. 118 milkweed calotropis, बहुत जगह है कैलोट्रोपिस हमारे सिलेबस में, मॉर्फोलॉजी में बहुत जगह। AL क्या सिखाता है? वेलवेट। फिर हमने कहाँ पे देखा था? हमारे पास ऑपोजिट फाइलोटेक्सी में, तो दोनों जगह पे आ गया। बट ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हर्बीवोर्स लाइक कैटल्स और द गोट्स एज इट इज। ये क्या हुआ? दिस अ प्लांट। कौन खाने आता है हमारे पास? हर्बीवोर्स। तो ये क्या हो गया? प्रीडेटर्स। वो क्या हो गया? प्रे। प्रे अपने आप को बचाना चाहता है। अगर वो प्रे एनिमल है तो भाग जाएगा, बट ये तो प्लांट है, तो क्या करेगा? प्रोड्यूसर्स निकोटिन। ये तो निकोटिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। निकोटिन कौन प्रोड्यूस करता है? निकोटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? टोबैको, जो आपका फेवरेट है। तो दिस इज नॉट द आंसर। सेकेंड, प्रोड्यूसर्स हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। यस, ये ऐसा ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है जो कार्डियक प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये क्या करेगा? हर्बीवोर के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डाइजेशन में, इससे उसका डाइजेशन अफेक्ट होगा और कभी कभी मर भी सकता है। वो क्यों जाएगा? दैट मीन्स ये हर्बीवोर इसको नहीं खाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारे पास क्यूनाइन। क्यूनाइन हमारे पास कौन प्रोड्यूस करता है? जिससे हमारे पास में क्या? मलेरिया करेक्ट होता है ना। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया, ये तो ना ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, शोज मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। वो कौन करता है? जैसे कैक्टस हो गया, पंचा हो गया, जिसमें भी थॉर्न है, रोजेस हो गया। सो दिस भी इसमें राइट नहीं है। देयरफॉर द आंसर फॉर 118 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। 119 हाइफी ऑफ द फंगस, फंजाई, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सभी का हाइफी ऐसे होता है। कॉमनली फेज्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अगर मेरे पास एक हाइफी है, ये मेरे पास नॉर्मली हाइफी होता है, यहाँ पे सेप्टा होता है। ईच ऑफ इट बिकम्स यूनिन्यूक्लिएटेड। अगर मेरे पास ये सेप्टा नहीं है, इसको मैं असेप्टेड बोलूंगी और मेरे पास न्यूक्लियस ऐसा हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस? लॉन्ग तो दोनों है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें तो सिंगल सिंगल में एक एक आ गया, यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। अब ये किसको बिलोंग करता है? हमारे पास 4 क्लासेस है फंजाई का। हमारे पास द वेरी फर्स्ट क्लास इज नोन एज फाइकोमाइसिटिस एंड दिस इज सीन इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटिस। एस्कोबेसियो ड्यूटेरो में मेरे पास में ऐसा मिलता है सेप्टेट, बट एस्कोबेसियो में हमारे पास कभी कभी डाइकैरियन स्टेज भी मिलता है विच इज ऐसा, बट ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड तो नहीं है। अगर पूछा कभी किसी पेपर में डाइकैरियन स्टेज किस में दिखता है? एस्को एंड बेसिडियो। ज्यादा किस में दिखता है? बेसिडियो। बट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। एग्जांपल बताओ फाइकोमाइसिटिस का। राइजोपस, म्यूकर, एल्बिगो, ठीक है।
120 मैंगो एंड कोकोनट, यही दो फ्रूट बना है प्रॉपर्ली इन मॉर्फोलॉजी फॉर यू, हैव ड्रूप फ्रूट्स, वेरी करेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ड्रूप फ्रूट? ड्रूप के अंदर में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन इज स्टोनी और हार्ड एंडोकार्प, स्टोनी हार्ड क्या है एंडोकार्प, एंड बोथ मैंगो और कोकोनट में स्टोनी और हार्ड एंडोकार्प होता है। दिस आर नॉर्मली सिंगल सीडेड फ्रूट, तो दिस इज करेक्ट। हैव सिंपल ड्राई फ्रूट्स, ये सिंपल ड्राई फ्रूट्स नहीं है, ये फ्लैशी फ्रूट्स है। आई होप आपको पता कितना पानी है, कितना मॉइस्चर है, बहुत सारा पानी है इसके अंदर। दिस आर फ्लैशी फ्रूट, एप्पल, मैंगो, ग्रेप, सबको फ्लैशी फ्रूट्स बोलते हैं, तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। प्रोड्यूस मल्टीपल सीडेड फ्रूट्स, ऑब्वियसली दोनों में सिंगल सीडेड है, सो दिस इज रॉन्ग। एडिबल पार्ट इज एंडोकार्प, अभी मैंने बताया स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। मैंगो में हम लोग खाते हैं मेसोकार्प, एंड इन केस ऑफ कोकोनट वी गो फॉर हैविंग द एंडोस्पर्म। सो दोनों के अंदर एंडोकार्प हम नहीं खाते, तो दैट इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। द आंसर फॉर 120 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। 121 इनकॉन्जॉइंट, दैट मीन्स व्हाट इज दिस? वस्कुलर बंडल, किसके लिए बोलते हैं वस्कुलर बंडल? दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। ये मेरे पास जाइलम है, ये मेरे पास फ्लोएम है, दिस इज सेड टू बी कॉन्जॉइंट, बट दिस कैन ईदर बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है, इसको कॉन्जॉइंट बोलते हैं। आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस, इसमें सेम रेडियस में है, ठीक है। सच वस्कुलर बंडल्स, अब देखते हैं क्या बोला है। यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, देखो फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, विच इज करेक्ट। आगे देखते हैं, आर प्रेजेंट इन द रूट्स एंड द लीव्स। कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल मेरे पास नॉर्मली कहाँ पर होता है? रूट्स में तो होता ही नहीं है। रूट्स में मेरे पास क्या होता है? रेडियल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? स्टेम। लीव्स में मेरे पास कॉन्जॉइंट होते हैं, सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि रूट्स के बदले स्टेम होना चाहिए था। आप प्रेजेंट इन रूट्स एंड द स्टेम, अगेन मेरे पास ये क्या हो गया? रॉन्ग। यहाँ पे रूट्स नहीं होना चाहिए था, सिर्फ स्टेम हो सकता था, लीव्स हो सकता था, दिस इज अगेन रॉन्ग। यूजुअली हैव फ्लोएम इनर टू द जाइलम, इनर टू द जाइलम फ्लोएम नहीं है, बाहर है, तो ये भी मेरे पास रॉन्ग है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। बट अगर कल मेरे से पूछ लिया गया फ्लोएम इज इनर टू द जाइलम, कभी ऐसा कंडीशन है? होता है, किसके अंदर होता है? बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स। बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल में जाइलम यहाँ पर है और फ्लोएम ऑन बोथ द साइड्स होता है। नॉर्मली सोलानेसी फैमिली हमारे पास में, सोलानेसी है, सबसे ज़्यादा हमारे पास क्यूकरबिटेसी है, वहाँ पे मेरे पास क्या होता है? बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, जहाँ पे मेरे पास क्या है? फ्लोएम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट। तो इनर फ्लोएम एग्जाम्पल है ना, किस में होता है? नॉर्मली क्यूकरबिटेसी में, ठीक है। चलिए, द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। 122 सेंट्रियोल्स आर सब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक अकेला बोलने से भी चलेगा, सब माइक्रोस्कोपिक कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक में माइक्रोस्कोपिक लिखा है। माइक्रोट्यूबुलर राइट है, माइक्रोट्यूबुल का बना है। सब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यूजुअली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ टू ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ये तो उसका बताया गया होता क्या है, तो क्वेश्चन है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, इन सेंट्रियोल होता क्या? Two central microtubules are connected by the bridges. सबसे पहले हम इसका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सेंट्रोल्स का ऑर्गेनाइजेशन इज 9+0, दैट मीन्स बाहर में 9 माइक्रोट्यूबुल्स है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ट्रिपलेट्स, और बीच में 0 है, तो यहाँ पे लिखा 2 central microtubules are connected by the bridges। ये लाइन राइट है, बट नॉट फॉर द सेंट्रल। किसके लिए राइट है? इट इज फॉर द फ्लैजेला एंड द सिलिया, क्योंकि वहां पे मेरे पास क्या होता है? 9+2, तो यहाँ पे 2 के बारे में बात करें, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड बाय द ब्रिजेस, विच इज करेक्ट, बट फॉर इसके लिए नहीं। नेक्स्ट 9 पेरिफेरल, 9 तो राइट है। आ गया क्या? डबलेट्स, 9 पेरिफेरल तक राइट है। डबलेट्स किस में होता है? अगेन इन केस ऑफ फ्लैजेला। अगर इसकी बात करती तो मेरे पास क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट्स, तो ये भी मेरे पास रॉन्ग हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अ कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व्ड। यस, अ कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका यहाँ पे, विच इज वेरी करेक्ट, इट इज रिटन इन एनसीईआरटी, द करेक्ट ऑप्शन। 9+2 ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, वो किस में होता है? सिलिया और द फ्लैजेला, तो दिस इज अगेन रॉन्ग, इसका होता तो 9+0। Therefore the answer for 122 happens to be the C option. 123, identify the locations labeled A and B in the given figure. तो लेट्स गो फॉर इट। ये है क्या? दिस इज सेड टू बी F0 F1 पार्टिकल, ठीक है, इसको एटीपेस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं।
और यहाँ पे बनता क्या है, ATP। तो चलिए देखो, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज सेड टू बी किस चीज का मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को आउटर की इनर पे होता है, जिसको मैं क्रिस्टी भी बोल सकती हूँ, ठीक है। द F0 एक्ट्स एज अ चैनल, इट्स एन इंटीग्रल प्रोटीन, इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। ये जो है मेरे पास में, ये जो पूरा पोर्शन है, व्हाट इज दिस नोन एज F1, दिस इज द हेड ऑफ इट, इट इज व्हाट, पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये मेरे पास इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। अब यहां से प्रोटॉन आर पुश्ड, जब प्रोटॉन यहां से जाते हैं, इन केस ऑफ द F1 एनर्जी मिलती है और हमारे पास ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाता है, ATP, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉस्फोराइलेशन सिखाया था। तो ये किस साइड है, दिस गोज टू द मैट्रिक्स आउट हियर, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। पर अगर आपको याद, सो आंसर फॉर दिस इज C। पर अगर आपको याद है, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास कहाँ बना है, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस 2, ऐसा ही ऐसा है, बट वहां पर मेरे पास यहाँ पे जनरली क्या लिखा होता है, CF0 एंड CF1, दिस स्टैंड फॉर व्हाट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें, उसके अंदर मेरे पास ये क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, फाइन विद दिस। अब वहां पे मेरे पास ये कहाँ बन गया, ल्यूमेन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन बन जाते हैं, ग्रेडियंट बनता है जिसको तोड़ना है, तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से कहाँ जाएगा, इट हैज टू गो टू द स्ट्रोमा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा होता, तो ये मेरे पास किसके बारे में बात कर रहे होते, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसा बना के दे दूं तो क्या पूछूं यहाँ पर, विच इज राइट, तो ये आंसर ये भी करेक्ट होगा, बट CF0 CF1 केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, फाइन। चलिए 124, how many different types of gametes are expected from the plant having this genotype? तो सबसे पहले हमको gametes के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 the power n. N out here stand for number of heterozygous alleles. Is this heterozygous? No. Is this heterozygous? Yes. Is this heterozygous? No. Is this heterozygous? No. Is this heterozygous? Yes. That means कितना heterozygous? 2. तो 2 to the power 2, that makes it 4. इसमें 4 gametes बनेंगे। The answer for this question happens to be the A option. अगर आपको चाहिए तो चलो मैं gametes भी बना देती हूँ। So these are the 4 gametes which have been formed. I hope it's clear to everybody. ठीक है ना, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में मैं बना के पूछूं कौन सा इसका गैमेट नहीं है। I hope it is clear to you. The answer for that is option number A. 125. Prokaryotic mRNA is different from the eukaryotic mRNA. चलो देखते हैं। Having polycistronic structure. Cistron is the functional part of the DNA. Structure and the functional part of it. In case of prokaryotes is polycistronic. Yes, पहले prokaryote लिखा है तो आपने prokaryote का फीचर देखना है। Polycistronic structure, yes, अगर आपको याद है लैक ऑपरन में ZYA एक ही प्रमोटर से तीनों बन जाते हैं। So this is very correct for the prokaryotes. Having monocistronic structure, नहीं, prokaryotes are different from this. ये eukaryotes के पास में ही होता है। This is for the eukaryotes. Eukaryotes are having monocistronic, which is for the eukaryotes, correct. Having a polyadenylate tail at the 3' end. Yes, जब हम HNRNA को mRNA बनाते हैं तो ये करते हैं. So this is also seen in case of the eukaryotes. Having requirement of ribozymes for maturation. अभी मैंने आपको क्या बोला, HNRNA को mRNA बनाएंगे तो obviously ribozymes चाहिए होते हैं, spliceosomes होते हैं, which is correct for eukaryotes. That means ये तीनों eukaryotes के लिए correct है, but मैंने prokaryote different from that. The answer for the question happens to be the A option. 126. Independent, photosynthetic, free living, gametophyte. Gametophyte. जैसे जैसे आप evolve हो रहे हो, अगर मैं classification में जाती हूँ, the sporophytic generation is dominant. Cedrus, Ginkgo, Pinus, ये तीनों क्या है? Gymnosperms. In gymnosperms, the dominant generation is what? It is said to be the sporophytic. ये सारे के सारे diploid हैं. The gametophyte is much reduced out here, few celled out here. ठीक है, तो यहाँ पे ये reduced है. Is this independent? No. बचा मेरे पास क्या? Dryopteris, which is what? A fern. यहाँ पे भी the dominant generation is sporophytic, but we do have a word which is known as prothallus. Prothallus is what? Prothallus is the heart-shaped structure.
विच इज सेड टू बी द गैमेटोफाइट, वो इंडिपेंडेंट होता है, मल्टीसेलुलर होता है, खाना बनाता है, बट स्मॉलर इन साइज। ठीक है ना? तो मेरे पास दिस इज द वन विच इज द गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपन्स टू बी द बी ऑप्शन। 127. How many different types of proteins can be produced by single ribosome? This is a line, directly a line in the translation portion. हमारे पास क्या लिखा है? 80 out here. Single ribosome में कितना proteins है? Directly है. So that is the answer is the C option. ठीक है? इसको कुछ समझाने का नहीं. You are supposed to remember that 80. 128. If round homozygous भी हो सकता है. Yellow. मतलब I'm talking about what? Heterozygous. Yellow. Seeded containing plants are cross pollinated. इसको मैं क्रॉस पॉलिनेट करती हूँ, होमोजाइगस को तो क्रॉस पॉलिनेट कर ही नहीं सकती, सब आंसर सेम आएगा। इसको मैंने क्रॉस पॉलिनेट किया। आपको पता है F2 जनरेशन में हम हेट्रोजाइगस को ही F1 में करते तो F2 में यही मिलता है। अब मेरे से पूछा फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लांट्स विच आर कंप्लीटली हेट्रोजाइगस इन F2। अगर आपको पूरा क्रॉस याद है दिस इनटू दिस तो वो तो अलग बात है, पर आपको याद करने का जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, आप मोनोहाइब्रिड को ले लो। अगर दिस इज बीन पॉलिनेटेड तो मेरे पास क्या ऑप्शन आता है? ऐसे ही आता ना, कितना हेट्रोजाइगस? यही दो है ना। सो दिस इज कितना हेट्रोजाइगस इन वन केस, इस केस में 2 out of 4। अब मैं इसको इससे करूंगी, सेम थिंग आउट हियर, कितना हेट्रोजाइगस है? 2 out of 4। तो मेरे पास कितना आ गया? 4 out of 16। उसने पूछा कितने हैं यहाँ पे कंप्लीटली हेट्रोजाइगस, तो आउट ऑफ 16 तो लिखा ही नहीं है, बट कितने हैं? दिस इज 4 out here, therefore the answer happens to be the D option। क्लियर? अगर आपको याद है मैंने जब आपके पास में पार्ट टेस्ट हुआ था मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सिखाए थे। 129 लेस सीजनल वेरिएशंस। लेस सीजनल वेरिएशंस पढ़ते ही मेरे पास में क्या आ गया? किस में होता है? इफ दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एनवायरनमेंट की बात करें तो मेरे पास ट्रॉपिकल लेवल एंड टेम्परेट है। किस में वेरिएशन ज़्यादा है? टेम्परेट में। क्या आ गया था? ग्लेशिएशन। बट आई एम टॉकिंग अबाउट लेस सीजनल वेरिएशन, अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट है। लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये सब किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल कंडीशंस। ऐसा कंडीशन में हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एन एरिया, ये सभी बता दिया। अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, क्या बता दिया? फंक्शन ऑफ टाइम है, तो दिस इज करेक्ट। हाई नीड स्पेशलाइजेशन इन एन एरिया, तो अच्छे से वहाँ पे अडेप्टेशन कर लिया है स्पीशीज ने, तो नीड स्पेशलाइजेशन हो गया है, अपना फंक्शनल रोल प्रॉपर्ली प्ले कर रहा है, राइट है। Complex and stable ecosystem, more the diversity it happens to be having बहुत सारा food webs out here and stable ecosystem तो होगा ही, which is correct, and therefore the answer is the D option। and they are talking about what? the tropical region जहाँ पर species diversity ज़्यादा होती। क्यों? तो ये conditions है and therefore we have more species diversity in case of the tropical। 130 vascular cryptogams। सबसे पहले cryptogams होता क्या है? क्रिप्टोगैम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन कौन है मेरे पास? एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है एंड टेरिडोफाइट्स है। ठीक है ना? अब ये तीनों है, इनमें से हमारे पास एम्ब्रायो किस किस में बनता है? ये दोनों एम्ब्रायोफाइट्स, ये तीनों क्रिप्टोगैम्स है, दोनों एम्ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, दोनों में एम्ब्रायो होता है। डू नॉट पोजेस, तो ये हमारे पास अच्छा होता है कौन? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। कौन है हमारे पास में? ये क्रिप्टोगैम्स है, इसमें एम्ब्रायो दोनों में। ये कौन है? वस्कुलर प्लांट। सो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ओनली टेरिडोफाइट्स। एम्ब्रायो है? यस है। टिश्यूज है? यस, सेल टिश्यू सब है। रूट स्टेम एंड द लीव्स है? करेक्ट है। फ्रॉम टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू हैव रूट स्टेम एंड द लीफ। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट रूट स्टेम एंड द लीफ नहीं होता है। सीड, नो। सीड किस में मिलता है? स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स कौन है हमारे पास में? Sperm मतलब seed, fight the plants with the seed formation। The answer for this question happens to be the D option, and they are talking about किसमें? They are talking about the pteridophytes। 131 which pair is wrong? Cisternae बुक में बना है, Golgi bodies के लिए Cisternae बना है, तो which is correct। F0 F1 पार्टिकल अभी सिखाया, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में मैं यहाँ पे ऑक्सीजोम लिख के दूँ। फिर मैं बोल रही हूँ मत बोलना कि एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में यस, एंड माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन व्हाट? एटीपी फॉर्मेशन, विच इज करेक्ट।
कमिंग बैक टू द वर्ड सिस्टर्नी गोल्गी बॉडीज विच इज करेक्ट. अगर मैंने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख के दे दिया, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, एनसीईआरटी में सिस्टर्नी नहीं लिखा है, दैट इज वाई मैंने इसको चेंज करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को चेंज करके गोल्गी बॉडीज दिया है. बट अगेन नेक्स्ट पेपर में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है या निट में आता है, बाकी ऑप्शंस को पढ़ेंगे आप, और अगर उसमें से कोई करेक्ट नहीं है तो उसको आप करेक्ट बोलेंगे. Thylakoids, Golgi bodies नहीं. Thylakoid is a part of what? It is a chloroplast का part. So this is not correct option. So this is wrong option. Histones chromosome में होता है, which is helping in packaging of it. Therefore the answer for 131 happens to be, the wrong वाला happens to be the C option. 132. When a taxonomist uses chemical constituents word आ गया. Trying to resolve the confusions, ठीक है. He or she is dealing with what? तो बिना इसको देखे कीमो वर्ड केमिकल आ गया. The answer should be option number C. But still let's go for the other options. साइटोटैक्सोनॉमी, कौन सा टैक्सोनॉमी? जहां पर हम लोग सेल की बात करते हैं, जहां पे हम लोग क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बिहेवियर सबकी बात करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? द साइटोटैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जैसे नंबर वर्ड आ रहा है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है. यहाँ पे हम सभी ब्रांचेस को ले रहे हैं एंड सबको सेम वैल्यू देते हैं, और किसके हेल्प लेते हैं? कंप्यूटर्स की. सो दिस इज नॉट द आंसर फॉर दैट. अल्फा टैक्सोनॉमी, गो फॉर द वर्ड. अल्फा हमारे सिलेबस में वर्ड नहीं है, बट फिर भी अगर अल्फा टैक्सोनॉमी आया, सो दैट इज बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. हम सबको पता है सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लेके ही टैक्सोनॉमी बनाई थी, क्लासिफिकेशन बनाया था. सो अल्फा टैक्सोनॉमी डील्स विद व्हाट? मॉर्फोलॉजी ऑफ इट. ओके, बट द आंसर हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. नेक्स्ट 133. पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको, किस में होता है? ई कोलाई में, प्रोकैरियोट्स में. इन द लैक ऑपरॉन, ऑब्वियसली लैक स्टैंड फॉर व्हाट? लैक्टोज. यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, अगर आपको याद है हमारे पास में ऐसे बना ZYA, ये क्या है? बीटा गैलेक्टोसिडेज. Y क्या है? परमिएज. A क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज. ठीक है ना. अब लेट्स गो फॉर इट. बहुत से सिस्टोन हो गया. सिंथेसिस ऑफ परमिएज, यस. ट्रांस एसिटाइलेज, यस. बोथ एंड बी राइट है. आगे देखो, ओनली बीटा गैलेक्सिडेज भी राइट है, बट वर्ड ओनली आ गया, दैट इज वाई रॉन्ग. अगर तीनों लिखा होता है, ऑल ऑफ दिस, तो राइट होता. ओनली पे फोकस करेंगे. आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. 134. इन यूनिलोक्युलर ओवरी, दिस इज ओवरी, एक चैम्बर लोक्यूल है, सिंगल ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट है. किस में है? दिस इज सीन इन केस ऑफ बेसल. नॉर्मली किस में होता है? एस्टरेसी. इवन सीन इन केस ऑफ ग्रासेस पोएसी. तो ये आंसर हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द अदर्स. एक्साइल प्लासेंटेशन किस में प्रेजेंट है? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था. सोलनम में है, लिलिएसी में है. वैसे हमारे पास कहाँ है? इट इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ लेमन. ठीक है ना. तो ये मेरे पास में आंसर, इसका आंसर नहीं है. मार्जिनल, मार्जिनल क्या बताया था मैंने आपको? पी हमारे पास में एक साइड पे, एक फ्यूचर पे लगा हुआ है. सो दिस इज सीन इन केस ऑफ पी. फ्री सेंट्रल, प्रिमरोज है हमारे पास में, तो ये इसका आंसर क्या है? प्रिमरोज. सो दैट इज नॉट सीन इन केस ऑफ दिस. द आंसर फॉर 134 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. एक्साइल पता है ना, दिस इज इट. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया. यहाँ से ओव्यूल आ रहे हैं, ठीक है ना. मार्जिनल ये ऐसा है, ऐसे, एंड फ्री सेंट्रल बीच में स्प्रेड है. ठीक है, चलिए. 135. मिथानोजेंस, किसके बारे में बात करें? आर्की बैक्टीरिया. बहुत दिन से आर्की बैक्टीरिया पे क्वेश्चन नहीं डाला था. लेट्स गो फॉर इट. आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट्स. हाँ जी, काउ बफलोस में प्रेजेंट होता है, इसके गट में प्रेजेंट, विच इज करेक्ट. आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग्स ऑफ द रुमिनेंट्स. करेक्ट है. कैन बी फाउंड इन मार्शी एरियाज. करेक्ट है. ये सारे मार्शी एरियाज में तो रहते हैं काउ एंड बफलोस. दैट मीन्स तीनों के तीनों राइट हैं. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. अदरवाइज हम सबको पता है आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप्स का होता है, मिथानोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स. ठीक है, बट ये सारे फीचर्स किसके बारे में बता रहे? मिथानोजेंस के बारे में. 136. सेक्शन बी. इनकरेक्ट फॉर स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स क्या है? जो कि हमारे पास प्लांट के जैसे फीचर भी देते हैं, एनिमल के जैसे फीचर भी देते हैं, एंड फंजाई के जैसे भी. मोल्ड मतलब ही फंजाई होता है. चलो देखते हैं.
Under suitable conditions they form aggregation known as plasmodium. प्लाज्मोडियम एनिमल के जैसा फीचर हो गया, हमारे पास ऐसे ग्रो करता रहता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं. प्लाज्मोडियम में ग्रो एंड स्प्रेड अंडर ओवर सेवरल फीट्स. खाना खा खा के बड़ा बनता है. करेक्ट. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, है ना. जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है ये फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे बना देता है. बेरिंग स्पोर्स, ऑब्वियसली स्पोर्स इसके अंदर ऊपर होते हैं एट द टिप्स, विच इज करेक्ट. द स्पोर्स लैक द सेल वॉल. नहीं, द प्लांट लाइक फीचर में क्या है, द स्पोर्स हैव द सेल वॉल. ये प्लांट लाइक फीचर है, वो एनिमल लाइक फीचर है. सो द आंसर फॉर दिस विच इज द इनकरेक्ट वाला हैपेंस विद द डी ऑप्शन. द आंसर इज डी. 137. Read the following statement and with respect to what? Basidiomycetes. Basidiomycetes, mycetes fungi हो गया, basidium बनाने वाला हो गया. The third class of this fungi. Sex organs are commonly present. No, यहाँ पे sex organs नहीं होते हैं, तो ये मेरे पास wrong हो गया. प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन. ऑब्वियसली क्या होता है, ये मेरे पास दो हाइफी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सेप्टेट होते. ये मेरे पास दोनों हाइफी है. जब ये फ्यूज करते हैं एंड क्या बना देते हैं, डाइकैरियन स्टेज. तो ये मेरे पास राइट है. द डाइकैरियोटिक स्टेज में, अच्छा उसके पहले दिस इज करेक्ट. टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स स्ट्रेन डिफरेंट होना पड़ेगा, ये दोनों अलग अलग होना पड़ेगा. सो दिस इज करेक्ट. डाइकैरियोटिक स्टेज में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम. यस, ये डाइकैरियोटिक स्टेज बाद में क्या बनाता है, बेसिडियम बना देता है. करेक्ट है. व्हाट इज बेसिडियम? बेस जो कार्प जो होता है, फ्रूटिंग बॉडी, विच इज करेक्ट ऑप्शन. कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम. करेक्ट है. कैरियोगैमी मियोसिस बेसिडियम में होता है. राइट राइट राइट. प्रोड्यूसिंग 4 एस्कोस्पोर्स. यहाँ पे गलत कर दिया, राइट लिख के एस्कोस्पोर के बदले क्या होना चाहिए था, बेसिडियोस्पोर्स. तो ये मेरे पास ऑप्शन रॉन्ग आ गया. दिस इज रॉन्ग. द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस इन द बेसिडियम. एक्सोजेनियसली मतलब बाहर में. ये अगर बेसिडियम है तो मेरे पास में यहाँ पे स्पोर्स होते हैं, अंदर नहीं. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. That means how many of the above statement are correct? 2 is correct, 3 is correct, 5 is correct. Therefore, 3 are correct out here. The answer for this question happens to be the A option. 138. Which of the following is correct for red algae? The thalli of most of the red algae are multicellular. Yes, red algae is multicellular. Normally multicellular होता है, which is correct. Some of them have complex body organization. Book में लिखा है complex body organization is seen in red algae. Correct है. The food is stored in the form of Floridian starch. Correct है. And which is similar to amylopectin and glycogen in structure. This is again correct. Line to line सब कुछ यही लिखा हुआ है NCERT का. Which is correct. All of these are correct. The answer for that happens to be the D option. और इसमें पिगमेंट कौन है? R फाइकोएथ्रिन. और क्लोरोफिल A तो होना ही पड़ेगा. ये रेड कलर किसके लिए? फाइकोएथ्रिन. फाइको मीन्स एल्गल. ठीक है. 139. Select the correct statement for nucleolus. न्यूक्लियोलस, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं इसको. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में अलोंग विद द क्रोमोसोम्स यहाँ पर ऐसा एक राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं. इट्स अ साइट ऑफ mRNA. नो, इट्स अ साइट ऑफ व्हाट? rRNA. ठीक है. सो विच इज रॉन्ग. The content of the nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm. सबसे पहले ये जो है स्ट्रक्चर, इसके पास में मेम्ब्रेन नहीं होती है. इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस. इसमें लिखा सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस. जब इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके अंदर कोई बैरियर नहीं है, तो कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म. यस, ये और इसके पास में कोई बैरियर नहीं है तो दैट इज कंटिन्यूअस. दिस इज द राइट ऑप्शन. न्यूक्लियोलस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं. न्यूक्लियोप्लाज्म हैज व्हाट? न्यूक्लियोलस. इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं जाता है, इसे कंटिन्यूअस है इसके साथ, बट अंदर नहीं जाता है. ओके. एंड ये क्या? सिंगल मेम्ब्रेन, विच इज अगेन रॉन्ग. तो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. फिर से बोल रही है, थर्ड ऑप्शन से कंफ्यूजन नहीं करना है. न्यूक्लियोलस में बाउंड्री नहीं है, कंटिन्यूअस है, बट दैट डज नॉट मीन कि न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर आ गया. ये खुद न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, बट इसका न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर नहीं आया. देयरफॉर द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 140. Choose the substrate level phosphorylation. मतलब डायरेक्ट phosphorylation. That means हमको बैंक में नहीं जाना. कौन से बैंक में? ETS में नहीं जाना या ETC में नहीं जाना. चलिए, डायरेक्ट हमारे पास ATP बनता है.
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मतलब यहाँ पे फॉस्फेट लगा है, वो फॉस्फेट लेके मैं क्या करूंगी, एडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा के एटीपी बना दूंगी। तो ये तो हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, करेक्ट है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट बनता है, ये मेरे पास किसका था, ग्लाइकोलाइसिस, ये मेरे पास किसका, टीसीए। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट जब बनता है, कोएंजाइम बाहर निकलता है और यहाँ पे मेरे पास जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विच फॉर्म्स जीटीपी, फिर वो कन्वर्ट होके एटीपी बनाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 1,3-bis phosphoglycerate forms 3-phosphoglycerate, that means 1,3 अगेन एक फॉस्फेट मेरे पास एक्स्ट्रा है, वो एडीपी ले लेगा, एटीपी बना देगा और ये 3 से 3 हट गया तो 3 बन गया यहाँ पे। दिस इज अगेन वही सेम, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बना रहा है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल और डायरेक्टली करा रहे हैं एटीपी फॉर्मेशन। Therefore the answer for this question happens to be the D option, all of these are correct. Okay, चलिए। Out of the 5 different protein complexes 1, 2, 3, 4, 5 present in the inner mitochondrial membrane, सभी present है, चलो ठीक है। अब देखो क्या 1, 2, 3 and 4 are electron transporters, करेक्ट है, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। 5 वाला नहीं करता है, 5 वाला कौन है, F0 F1, तो प्रोटोन कैरियर है। 1, 3, 4 आर प्रोटोन पंप्स, ये भी प्रोटोन पंप भी ठीक है। 2 वाला प्रोटोन पंप नहीं है, ठीक है, आपने देखा ना ऐसे एरो से जा रहे हैं प्रोटोन यहाँ से। 5 is not an electron transporter but helps in the synthesis of ATP, obviously मैंने अभी बताया 5 कौन है, F0 F1, वो ATP synthesis में हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जा रहा है, ठीक है। So this is also correct, therefore the answer for the question happens to be the D option। 142, चलिए देखते हैं मैथ्स कितना स्टूडेंट्स कर सकते हैं। Suppose in a flower of pea each microsporangium possesses 20 pollen mother cells, so देखते हैं 20 pollen mother cells, ठीक है ना। Then the total number of microspores produced in the flower will be, let's go for it, 1 micropollen mother cell या microspore mother cell meiosis करके कितना प्रोड्यूस करते हैं, 4। Therefore 20 into 4 कितना हो जाता है, 80। अब कई स्टूडेंट्स ने सोचा होगा 80 आंसर, नो। अब ये तो चीज ठीक है, बट एक के अंदर में, एक एंथर के अंदर में एक माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं होता है। कितना माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, 4। तो 80 into 4 मैं करूंगी तो कितना आंसर आता है, 320। तो कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं 320 आंसर है, बट अच्छा हुआ 320 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका आंसर ये है कि नहीं, नहीं। आगे पूछा क्या, फ्लावर में। अगर आपको याद है इन केस ऑफ पी हमारे पास में क्या लिखा है, एंड्रोशियम 9+1, दैट मीन्स डाइअडाल्फस 10 है, दैट मीन्स 320 into 10, व्हाट इज द आंसर फॉर दैट, 3200। The answer for this is the C option. Give me thumbs up if you have done that. 143. Which of the following is true? Emasculation, removal of what, anthers from the flower of the unisexual flowers. क्यों करना है, यूनिसेक्सुअल में मेल है ही नहीं तो मैं क्यों निकालूंगी, so this is false. Emasculation is performed before the anther dehiscences. Obviously dehiscence करने से पहले निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे पास में क्या होगा, पहले ही pollination कर देगा। This is correct. Apomixis is, what is this? क्या है हमारे पास में, यहाँ पे asexual reproduction seeds बना रहा है। Is not present in grasses. ये क्या है मेरे पास, wrong. It is present in grasses and asteraceae. So ये तो wrong है, होना चाहिए। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज ऑलवेज अनसक्सेसफुल, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो हमको करने का क्या जरूरत है, हाइब्रिड्स क्यों बनाना है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देयरफॉर द आंसर फॉर 143 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। 144, कंसिडर क्रॉस दिस एंड दिस। चलिए व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनिस विद दिस, चलिए देखते क्या है। अब हमने क्या करना, पहले ले कैपिटल ए स्मॉल ए इनटू दिस, है ना, तो मेरे पास क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गया, ठीक है। फिर सेकंड को ले लो, इसको क्रॉस करने क्या, सभी कैपिटल बी वही आएगा। एंड फोर्थ वाला क्या, कॉपी ऑफ दिस, चलो इट्स गो फॉर इट। अगर मैंने इसको इससे क्रॉस किया, कितने कैपिटल ए आएंगे, मेरे पास कितना आया, 2/4 हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल बी को तो सारे के सारे सेम आएंगे, 1 है ना। फिर मैंने कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल सी, तो कितना आएगा मेरे पास में, कैपिटल सी कितना आएगा मेरे पास में, अगेन 2/4, ठीक है ना। अब देखो कितना आ गया मेरे पास में, आई गेट व्हाट, 4/8,
What do I get? 16. What does it mean? 1/4. The answer for the question happens to be the A option. ठीक है, क्लियर है, घबराना नहीं है, सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस को लेना है. A option. 145. Which of the following is incorrect? इसको देखना है. Multiple allylism is evident in a population. Obviously multiple alleles. Blood group है, 4 alleles है हमारे पास में, 4 होता है, 3 एलियंस हमारे पास में A, B and O. अब ये जो हमारे पास है एक इंडिविजुअल में, मेरे अंदर में सिर्फ 2 ही है ना, सो दैट इज सीन इन केस ऑफ पॉपुलेशन. सो दिस इज करेक्ट. कंस्ट्रिक्टेड पॉड शेप इज इन द पीस रिसेसिव ट्रेट. यस, इन्फ्लेटेड हमारे पास जो होता है, ये फुल हमारे पास जो होता है इज व्हाट? द डोमिनेंट ट्रेट. द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल जीन ऑलवेज प्रोड्यूसेस वन फिनोटाइपिक इफेक्ट. नहीं, हमारे पास क्या वर्ड है? प्लियोट्रोपिज्म. प्लियोट्रोपिज्म क्या है? एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? हमारे पास ये, अगर मैं जा रही हूँ क्या, शेप ऑफ द सीड जाती हूँ, तो मेरे पास क्या है वहां पर? शेप ऑफ द सीड क्या है? राउंड एंड रिंकल्ड है. वही जीन मेरे पास क्या दिखा रहा है? स्टार्च प्रोडक्शन भी दिखा रहा है. सो एक से ज्यादा इफेक्ट को प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे ऑलवेज इज रॉन्ग. Therefore the answer for the question happens to be C option. फिर भी D को भी देखते हैं. Very closely placed genes on a chromosome have the chances of linkage. Obviously, जितना पास आप है उतना ज़्यादा linkage है. More far you are, more crossing over or recombination you are going to have it. 146. Which of the following is true for the location of genes on the Drosophila? दो बड़ा बड़ा क्रॉसिंग किया हुआ है वहां पे, मॉर्गन का क्रॉस. ड्रोसोफिला में देखो किस किस में किया है. दे हैव गॉन फॉर व्हाट? द बॉडी कलर एंड द आई कलर. और दूसरा क्रॉस किस में है? द आई कलर एंड द विंग्स, साइज ऑफ द विंग्स. तो देख लीजिए, दिस W स्टैंड फॉर द आई, W स्टैंड फॉर द आई, M स्टैंड फॉर द विंग्स एंड Y स्टैंड फॉर व्हाट? प्लस प्लस है. चलो, स्टैंड फॉर व्हाट? इट स्टैंड फॉर द बॉडी कलर. ठीक है. अब अगर आपको याद है इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन कितना है, इट इज व्हाट? हमारे पास में वहां पे 98.7 है लिंकेज, तो रिकॉम्बिनेशन कितना? 1.3. इसमें अगर मैं जाती हूँ तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है 62.8, बट वो कितना है हमारे पास में? 37.2. जितना हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स directly proportional to the distance. ठीक है, let's go for it. The distance between the genes, this and this is greater than this. No, this is less, this is the distance, so this is wrong. The distance between this two and this two is what? Same. This is wrong. यहाँ पे distance again इसका ज़्यादा है. Distance between the genes, this is what? Greater than the distance between these two. So automatically this is the right answer. All of these are incorrect, which is wrong. The answer for this question happens to be the C option. 147. Two statements hai. One is labeled as assertion A and other is as reason. Let's talk about that. A. A flower is defined as a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to the floral meristem. हमारे पास में morphology में flower को modified shoot बोला है. Shoot apical meristem modifies into the floral meristem, which is very correct statement. Correct है. That means shoot and flower are quite similar. Internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages. तो सुनिए, अगर एक शूट को फ्लावर से कंपेयर किया या फ्लावर को शूट से कंपेयर किया है, तो शूट के अंदर नोड्स इंटरनोड्स होती हैं. तो दैट मीन्स डू वी हैव नोड्स इंटरनोड्स इन केस ऑफ द फ्लावर? यस, हमारे पास में फ्लावर में भी इंटरनोड्स होंगी, बट व्हाट आर दीज? यहाँ पे कंडेंस हो गई है. तो दैट मीन्स अब मेरे पास में क्या हो गया? वहां पे लेटरली क्या आता था? लीव्स. बट यहाँ पे लेटरली क्या आएगा मेरे पास में? इंस्टेड ऑफ द लीव्स फ्लोरल अपेंडेजेस है. कौन कौन सा? द कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इसी का एक्सप्लेनेशन है. बोथ ऑफ दिस आर करेक्ट. एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, तो पहले वाले में लिखा नॉट एन एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे तो रॉन्ग लिखा है. तो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. दोनों करेक्ट है एंड उसका एक्सप्लेनेशन इज वेरी करेक्ट. 148. In a hybrid DNA molecule, ये मेरे पास हाइब्रिड है 15 and 14. ठीक है. Allowed to replicate twice in the normal culture medium. तो परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड पूछा आपसे, तो ऑटोमेटिक एक से मेरे पास 2 बनेगा. 2 में से कितना रह जाएगा? 1/2. फिर मेरे पास 2 से 4 बनेंगे. कितना हाइब्रिड रहेगा? 1/4. द आंसर फॉर दैट मीन्स 1/4 इज 25%. अगर नहीं आया तो आई एम डूइंग दिस फॉर यू.
15 14 ये टूटा, ये यहाँ पर आ गया 15 है, ये 14 है, यहाँ पे नया स्टैंड बनेगा सेमी कंजर्वेटिव 14 14। तो 1 आउट ऑफ 2 बिकम्स व्हाट यहाँ पे इन द फर्स्ट जनरेशन। पर मुझे सेकंड जनरेशन पूछा है, अगेन ये 15 हो गया, इसका ये 14 आ गया, ये इसका 14 आ गया, ये इसका 14 आ गया, नया बनेगा यहाँ पे 14 ईच। दैट मीन्स आउट ऑफ 4 कितना रह गया, 1 रह गया। दैट इज वाई 25। अगर फर्स्ट जनरेशन पूछते तो मेरे पास क्या होता, 50। द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। 149 incorrect match with respect to Human Genome Project. Express sequence tags identifying the genes that are expressed as RNA. Correct है, ठीक है ना? चलिए, sequence annotation, sequencing both coding and non coding, इंट्रॉन एक्सॉन दोनों को करना है। दैट मीन्स तो सिर्फ एक्सप्रेस करें उसको नहीं, सारे के सारे को असाइनिंग डिफरेंट फंक्शंस। करेक्ट है। YAC एंड BAC are cloning vectors. करेक्ट है। होस्ट कौन है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 22, द लास्ट क्रोमोसोम टू बी असाइंड। आपको पता है अगर मैं ऐसे जाती हूँ, सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन है, 1, फिर 2 से छोटा, ऐसे करते करते तभी Y सबसे छोटा। तो लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस कौन होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। सो दिस इज रॉन्ग आउट है, ये सबसे बड़ा है क्रोमोसोम। कब हुआ था हमारे पास, मई 2006। सो आंसर फॉर दिस 149 हैपेंस टू बी द D ऑप्शन। 150, in which of the following age pyramids the proportion of pre-reproductive individuals is very high in comparison to reproductive and post-reproductive. So let's go for seeing that. अगर मेरे को याद है, ऐसे 3 बने हुए हैं age pyramids. What is this? Pre-reproductive. What is this? Reproductive. This is post-reproductive. ठीक है ना? दूसरा मेरे पास बना ऐसा कुछ pre and this is reproductive, ये छोटा। और तीसरा मेरे पास बना है ये दिस इज रिप्रोडक्टिव, दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव। चलो देखते हैं, अगर मेरे पास प्री रिप्रोडक्टिव बड़ा है, फिर रिप्रोडक्टिव से पोस्ट को छोड़ भी सकते हैं याद करने के लिए। ये दोनों को अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास ये क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। यहाँ पे मेरे पास सेकंड में देखो प्री एंड रिप्रोडक्टिव इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इसको बोलते हैं स्टेबल। थर्ड में देखो प्री इज छोटा एंड रिप्रोडक्टिव इज बड़ा, उसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग। ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ग्रोइंग में अगर आप देखो तो क्या शेप दे रहा है मेरे पास, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। अगर मैं सेकंड को देखती हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बेल शेप्ड। क्या बोलते हैं, बेल शेप्ड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्न शेप्ड, मतलब फ्लावर वास होता है ना उसके जैसे। ये वर्ड्स ट्रायंगुलर, बेल शेप्ड एंड अर्न बुक में नहीं है, बट आपके पास में ऑप्शन में ऐसे आ सकता है, तो प्लीज रीड दैट प्रॉपर्ली। देखो इसमें अब हमने पूछा है pre-reproductive individuals is very high in comparison reproductive, तो that means they are talking about this, है ना। तो देखिए stable population no, वो कब होता, जब मेरे पास ये बराबर होता, pre is equal to reproductive, so this is not the answer। expanding उसी को growing बोलते हैं, pre is greater than reproductive, expanding है, तो यहाँ पे मेरे पास शेप भी क्या आता है, triangular। declining मेरे पास अर्न शेप आता है, pre reproductive is lesser than that, प्री रिप्रोडक्टिव इज लेसर, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव इज मोर, तो ये डिक्लाइनिंग। इमिग्रेंट पॉपुलेशन मतलब छोड़ के जा रहा है, ये नहीं ऐसे, बट मैंने आपको नया चीज क्या सिखा दिया, शेप ट्रायंगुलर। इस टेबल में आ गया बेल, इसमें आ गया ट्रायंगुलर, इसमें आ गया अर्न। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में मैं वो डाल के दूं, मत बोलना कि एनसीईआरटी में नहीं है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। आई होप आपने सॉल्यूशंस अच्छे से देख लिए हैं, नई चीजें भी हमने सिखाया है, आई होप आपने उसको भी नोटिस किया। बट स्टूडेंट्स, आप अपना प्रोग्रेस खुद से देखिए, जैसे जैसे एफटी पेपर बढ़ रहे हैं आपके नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे। व्हेन यू गेट मोर मार्क्स इन ईच पेपर, द कॉन्फिडेंस बिल्ड्स इन यू। वंस द कॉन्फिडेंस बिल्ड्स इन यू, आप जाके नेल करोगे एंड यू आर गोइंग टू गो फॉर गेटिंग अ सीट फॉर योरसेल्फ। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।